اوکے اب بعد میں شروعات کر. آواز نکالو نا. آواز ہے آواز ابھی جب بولا نا تم کی آواز نہیں ہے تو کیا کرو سب کی آواز بند ہے نا. نہیں ہم بات. اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاخیر کے لیے سب سے پہلے معذرت اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ بخیر عافیت سے ہوں گے. تو چونکہ آج ہم لوگ کا ایک پروگرام تھا جس پروگرام کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے نا. تو انشاءاللہ جلد ہی اس پروگرام کو ہم لوگ نپٹا لیں گے. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بلا تاخیر کے. اور تلاوت قرآن کے لیے سب سے پہلے میں دعوت سخن دیتا ہوں شیخ انعام عظیم تیمی صاحب کو. وہ تلاوت قرآن پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلی بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ. چلیے ماشاء اللہ بہت زبردست آپ نے تلاوت قرآن پیش کیا. اور اس کے بعد جو ہے نعت شریف پیش کرنے کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں شیخ سلامت اللہ ریاضی صاحب کو. وہ نعت شریف پیش کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرمائیں. ہمارے دینوں کے رہبرو رسول اکرم ہے. ہمارے دینوں کے رہبرو رسول اکرم ہے. حبیب خالق اکبر رسول اکرم ہے. اندھیرے ہم کو ستائے اندھیرے ہم کو ستائے یہ کیا جہالت کے. اندھیرے ہم کو ستائے یہ کیا جہالت کے. اندھیرے ہم کو ستائے یہ کیا جہالت کے. چراغ نور سے بڑھ کر رسول اکرم ہے. چراغ نور سے بہتر رسول اکرم ہے. ہمارے دینوں کے رہبرو رسول اکرم ہے.
দাদা বলা যাচ্ছি رسول یوں تو بہت ہاں দুটা হতে একটা আর ছোট কাকা ہے زمانے میں رسول یوں تو بہت آئے ہیں زمانے میں رسول یوں تو بہت آئے ہیں زمانے میں مگر جو سب سے ہے بڑھ کر رسول اکرم ہے ہمارے دینوں کے رہبر رسول اکرم ہے ہماری تشنہ لبی اس پہ ناز کرتی ہے ہماری تشنہ لبی اس پہ ناز کرتی ہے ہماری تشنہ لبی اس پہ ناز کرتی ہے ہمارے تشنہ لبی اس پہ ناز کرتی ہے ہمارے ساقی کوثر رسول اکرم ہے ہماری تشنہ لبی اس پہ ناز کرتی ہے ہمارے ساقی کوثر رسول اکرم ہے ہمارے دینوں کے رہبر رسول اکرم ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست نعت نبی پیش کر رہے تھے ہمارے شیخ سلامت اللہ صاحب. اب ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں, تقریباً 8 لوگ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. تو جو لوگ اپنا یہ نہیں کھولے ہوئے ہیں آڈیو اور ویڈیو وہ ضرور کھول لیں. اور تو ابھی جو ہے ابھی شیخ شریف صاحب اسی پہ آ جائے, چونکہ آج کے ہمارے خاص مقرر تھے ہمارے شیخ شریف تیمی حفظہ اللہ وطول. آج ہم لوگ میٹنگ میں تھوڑا مشغول ہو گئے تھے اس لیے تھوڑی تاخیر ہو گئی ہے. تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہے نا. تو ابھی اس کے بعد جو ہے میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اتحاد و اتفاق کے اوپر شاید ان کا موضوع ہے تو ان کے اوپر آپ جو ہے خلاصہ پیش کریں. اور آپ میں سے جو لوگ بھی اگر اس کو چیز کو شیئر کر سکتے ہیں تو شیئر کریں, اس لیے کہ فیس بک کے ذریعے بھی اگر آپ شیئر کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں تک چیزیں پہنچ جاتی ہیں. تو ابھی ہمارے سامنے جو ہے آ گئے ہیں ہمارے شیخ شریف تیمی صاحب حفظہ اللہ. تو لیجیے ان سے آپ تقریر خطاب سماعت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا
वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-मुअमिनु लिल-मुअमिन कल-बुनियान यशुद्दु बअज़ुहु बअज़ा। तमाम किस्म की तारीफ़ात वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समा के लिए लायक और ज़ेबा है। दुरूद सलाम का नुज़ूल हो इस सिलसिलतु ज़हब की आखिरी कड़ी मुहसिन इंसानियत मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बड़ी खुशी की बात है कि उलमाए कराम की एक बड़ी टीम इस मजलिस के साथ जुड़ी हुई है। अल्लाह तबारक व तआला इससे जुड़ने वाले तमाम उलमाए कराम को मज़ीद दावत व तबलीग की तौफ़ीक अता फ़रमाए और उनके मालो औलाद में बरकत अता फ़रमाए। हज़रात गिरामी, यह एक मुसल्लमा हकीकत है कि इत्तेहाद व इत्तेफाक किसी कौम की अज़मत व रिफ़अत, किसी कौम की सरबलंदी व तरक्की, किसी समाज की कामयाबी व कामरानी का एक अहम ज़रिया है। वहीं दूसरी जानिब नाइत्तेफाकी किसी कौम, किसी समाज और किसी मुल्क की बर्बादी, ज़िल्लत व रुसवाई का पेश ख़ीमा है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को कुरान मुक़द्दस में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुत्तहिद रहने की तलक़ीन की है, एक और नेक बनकर ज़िंदगी बसर करने का हुक्म दिया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद गिरामी है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में इख्तलाफ मत करो। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला नाइत्तेफाकी के बुरे नताइश पर रोशनी डालते हुए फरमाता है, अतीउल्लाह व रसूलहु वला तनाज़उ फतफशलु व तज़हब रिहुकुम। ऐ मुसलमानों, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और आपस में तनाज़ा और इख्तलाफ मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम कमज़ोर हो जाओगे। और जब हम हैं अल-मुअमिनु लिल-मुअमिन कल-बुनियान यशुद्दु बअज़ुहु बअज़ा, कि एक मुसलमान, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दीवार की तरह है जो एक दूसरे को मजबूती फराहम करता है।
حضرات گرامی، جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب تک مسلمانان عالم متحد اور متفق رہے، نا اتفاقی، اختلاف، خلفشار سے دور رہے، تو ان کی کامیابی کا ستارہ چمکتا رہا۔ انہوں نے جدھر رخ کیا فتح و نصرت انہیں ہاتھ آئی۔ وہ ایک مضبوط قوم بن کر کے رہی، دنیا ان سے مشورے لیتے رہے، بلکہ ساری دنیا ان کے حکموں، ان کے فیصلوں کے تابع رہی۔ لیکن جیسے ہی مسلمانوں میں دراڑ پیدا ہوا، آپس میں اختلاف پیدا ہوا، تو ان کی ہوا اکھڑ گئی، ان کے اپنے اندر ہی دشمن پیدا ہوئے جنہوں نے ان کو کمزور کر دیا۔ وہ کامیابی، وہ بلندی جو انہوں نے بہت کم عرصے میں حاصل کی تھی، سب پر پانی پھر گیا، اور پھر وہ مسلم قوم ذلیل اور رسوا ہو کر کے رہ گئی، اور آج تک اس ذلت و رسوائی سے وہ نہیں نکل سکی ہے، جس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ نا اتفاقی ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اتحاد جیسی عظیم نعمت سے نوازا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس عظیم نعمت کے ساتھ کھلواڑ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و حمایت بھی ختم ہو گئی، اور مسلمان جو ایک زندہ قوم کی حیثیت سے دنیا کے رہی تھی، وہ ایک مردہ قوم بن کر رہ گئی۔ اور حقیقت بھی ہے، اگر کسی قوم کے اندر، اگر کسی سماج کے اندر اتحاد و اتفاق نہ ہو، بلکہ اختلاف ہی اختلاف ہو، تو وہ ایک مردہ قوم تصور کی جاتی ہے، روحانی طور پر وہ زندہ نہیں رہتی۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں تفرقہ بندی پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 50 سال ہو گئے سیریا کے اندر، شام کے اندر، ایک بستی والے نے دوسری بستی والے کی بستی کو صرف اور صرف اس لیے جلا کر خاکستر کر دیا کہ ایک بستی والے یہ کہہ رہے تھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی سب سے بڑے ولی ہیں، اور دوسری بستی والے کہہ رہے تھے کہ نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نہیں، بلکہ شیخ احمد رافعی سب سے بڑے ولی ہے۔ اتنی معمولی بات پر ایک بستی والے نے دوسری بستی والے کے گھروں کو جلا کر رکھ دیا۔
بہت پہلے سیریا کے اندر یہ حادثہ پیش آیا تھا، لیکن ہم اور آپ آئے دن اس طرح کے حادثے اپنے قرب و جوار میں دیکھتے ہیں، بلکہ ابھی بھی بعض علاقے میں اگر کوئی اہل حدیث کسی بریلوی کی مسجد میں پہنچ جاتا ہے تو اس مسجد کو دھلاتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی بدنصیبی اور حماقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور میں یہاں کہنے کے لیے نہیں چکوں گا کہ اس اختلاف اور انتشار کو ہوا دینے والے علماء کرام بھی کم نہیں ہیں۔ آج ہم مسلم قوم کو کیا کوسیں، ان کو کیا کہیں؟ آج ہم علماء جو ایک دوسرے کو ایک سماج میں اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتے ہیں، وہ علماء کے اندر اس قدر شدید اختلاف ہے کہ الامان والحفیظ۔ ایک مولوی کو دوسرے مولوی سے اختلاف ہے، ایک مدنی دوسرے مدنی کی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ فکری اختلاف اس قدر ہے کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم علماء جو قوم اور سماج کو اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتے ہیں، اتحاد و اتفاق کی واضح و نصیحت کرتے ہیں، ہمارے اندر اجتماعیت ہوتی، لیکن آج ہر مولوی بجائے ایک شخص کے ایک قوم بننا چاہتا ہے، اور نتیجہ اس اختلاف کا یہ ہے کہ سارے کے سارے علماء ناکام ہیں۔ یہ اور کوئی ڈھنڈورا پیٹ لے کہ میں اپنی زندگی میں کامیاب ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ وہ سب کے سب ناکام ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ اور سب سے بڑی مثال آپ اپنے ملک نیپال کو لے لیجئے۔ ہر مولوی ایک ادارہ کھول رہا ہے، ایک ادارہ کھولتا ہے، ایک ادارہ کھولتا چلا آ رہا ہے، لیکن کیا کوئی مولوی ادارہ بنانے میں، منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو سکا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی صحیح معنوں میں جسے یونیورسٹی کہی جا سکتی ہے، کوئی یونیورسٹی موجود ہے، کوئی جامعہ موجود ہے، کوئی مدرسہ موجود ہے؟ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اختلاف ہے، ہم الگ الگ دائرے میں بٹ کر کے مرکز اور مدرسہ قائم کرنے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم منتہا تک پہنچتے پہنچتے ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، ادارہ کھلنے چاہیے، لیکن آپس میں مفاہمت بھی بہت ضروری ہے۔ اگر مفاہمت رہتی ہم علماء کے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر، تو آج ہمارے نونہالوں کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا کہ ہم پڑوسی ملک کے محتاج ہمارے بچے رہتے ہیں۔ یہ اختلاف ہی کا نتیجہ ہے۔ اس وجہ سے میں یہ کہوں گا علماء کرام سے، بالخصوص چونکہ یہاں پہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، کہ بھائیوں اپنے اندر اتحاد پیدا کرو سب سے پہلے، اور ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا بند کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف صلاحیتیں مختلف لوگوں کے اندر عطا کی ہیں۔ اگر کسی کے اندر
तंजीमी सलाहियत है तो किसी के अंदर तहरीरी सलाहियत है, किसी के अंदर तकरीरी सलाहियत है, किसी के अंदर, मतलब सलाहियतों की बहुत सारी किस्में हैं। कुछ कम ज़र्फ़ और तंग नज़र आलिम ये समझते हैं कि सलाहियत चंद चीज़ों के मजमूए का नाम है और उन पर हम हावी हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। हम अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे का एहतराम करें। अगर हमारे अंदर इत्तेहाद होगा तब जाकर के हमारी कौम में इत्तेहाद पैदा होगा। हम खुद मुत्तहिद नहीं हैं और अपनी कौम को, अपनी मिल्लत को, अपने समाज को इत्तेहाद की दावत देते हैं। ये हिमाकत नहीं तो और क्या है। आप लोगों ने बुखारी के अंदर एक हदीस पढ़ी होगी, सबको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने शबे कदर जैसी मुहतम बिशान रात के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाखबर किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम को बतलाने के लिए निकले ही थे कि रास्ते में दो सहाबी को झगड़ते हुए देख लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तस्फिया करने लगे। नतीजतन ये हुआ कि शबे कदर का जो इल्म था वो उठा लिया गया। सबको मालूम है, मतलब इख्तिलाफ से, ना इत्तेफाकी से, इंतशार से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत ख़त्म हो जाती है। आज हम कितनों दुआएं करते हैं, लेकिन रहमत व इनायत उनका क्यों है, अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल क्यों नहीं हो रही है? वजह यह है कि हमने कदम कदम पर अपने रब की नाफरमानी की है, अपने रब के हुक्म को ठुकराया है। इस वजह से आज रब की रहमत हमसे दूर हो चुकी है। आज एक मौलवी अपने दूसरे मौलवी को अपना दुश्मन और अपना बदखाह समझता है और दूसरे को पता नहीं अपना दोस्त बनाने से क्यों कतराता है, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए दीवार की तरह है। अगर ये सिफत हमारे अंदर नहीं है तो गोया कि हमारे ईमान में खोट है, हमारे ईमान के अंदर कमजोरी है। हमें अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए और अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। अपने आप को, हमको अपने समाज में एक चट्टान की तरह रहना चाहिए ताकि आदाए इस्लाम हमें हटा ना सके, हमें मुनहदिम न कर सके। अगर कहीं पे किसी समाज के अंदर मुसलमान दो जमातों में मुनकसिम हैं तो उलमा भी क्या कहते हैं, दो जमातों में मुनकसिम होकर अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। उन्हें कभी भी उन दो जमातों को मुत्तहिद करने की तौफीक नहीं होती। वो अकेले ही या ये कि जमातों में रह करके ही जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, जबकि हमारे पास कुरान और हदीस का इल्म है। हमें तो होना चाहिए था कि हम इस फिरका बंदी को नकारें, इस फिरका बंदी की जिस कदर होनी चाहिए मजम्मत करें, लेकिन चे जाए कि हम मजम्मत ना करके अपने आप को भी जमातों और पार्टियों में बांट देते हैं।
नतीजा ये है कि आज हम उलमा का अपने समाज पर कोई असर व रसूख नहीं है। हम अपनी औकात, हम अपना वक़ार खो बैठे हैं। तो ज़रूरत इस अम्र की है दोस्तों कि सबसे पहले हम उलमा अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें, एक दूसरे के तईं अपनी नीयत खालिस करें। एक आलिम दूसरे आलिम को अपना दोस्त समझें और किसी को हकीर न समझें, क्योंकि एक बंदा पीएचडी की भी डिग्री हासिल कर लेता है, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर वो सलाहियत नहीं रहती है जो एक मामूली मौलवी के अंदर होती है। तो मैं ये कहूँगा उलमाए कराम से कि आप लोग सबसे पहले अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करें और फिर अपने समाज में लोगों को एक दूसरे से जोड़ें, मुसलमानों को मुत्तहिद रहने की तलकीन करें और उन्हें अपने असलाफ के इत्तेहाद की मिसालें पेश करें, तभी जाकर के हम सुरखरू हो सकते हैं। मुझे ताज्जुब है कि मुसलमान मुत्तहिद होने के लिए तैयार क्यों नहीं है। आज गैर मुस्लिम अपने आप को मजबूत करने के लिए मुत्तहिद हो जाते हैं। आप दूर न जाएं, खुद अपने नेपाल का जायजा लें। हमारे नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी को जब ज़रूरत महसूस हुई कि हमें इक़्तिदार उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक हम आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे, तो कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर मुत्तहिद होकर के काम किया और आज वो हुकूमत उनके हाथों में है। आज नेपाल के स्याहो सफ़ेद के मालिक वो हैं, लेकिन हम मुसलमानों को पता नहीं क्या हो गया है। न तो दीनी एतबार से हम मुत्तहिद हैं, न सियासी लिहाज से मुत्तहिद हैं, मतलब किसी भी लिहाज से हम मुत्तहिद नहीं हैं। हम लोगों ने कसम खा लिया है कि हम मुत्तहिद नहीं होंगे। आज हम गैर मुस्लिमों को कोसते हैं कि उनके पास कोई इल्हामी किताब नहीं है, उनके पास ये नहीं है, उनके पास वो नहीं है, लेकिन उनके पास इल्हामी किताब न होने के बावजूद वो किस कदर समझदार है, उनके पास कोई इल्हामी हुक्म न होने के बावजूद वो किस कदर चालाक है कि वक्त आने पर वो मुत्तहिद हो जाते हैं। और हम मुस्लिम कौम के पास जो हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीस है, हमारे पास सच्ची तारीख़ है, सब कुछ होने के बावजूद हम मुंतशिर हैं। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। अल्लामा इक़बाल ने बहुत पहले कहा था अपने समाज और अपनी सोसाइटी को देखकर, और ताज्जुब करते हुए कहा था कि क्या हम एक दूसरे से अलग रह करके अपने आप को ये समझते हैं कि हम कामयाब हैं। नहीं भाइयों, ये हमारी कामयाबी नहीं है। हमें अपने अंदर तफाहुम पैदा करना होगा, हमको अपने अंदर इज्तिमाइयत पैदा करनी होगी। अगर हम चाहते हैं सही मानों में सुरखरू होना, हम चाहते हैं सही मानों में कामयाब होना, हम चाहते हैं सही मानों में कौम का दुनिया का बावकार और मुकर्रम मुहतरम कौम बनना, तो हमें मुत्तहिद होना होगा। तब जाकर के हम
जिंदगी के मुख्तलिफ मैदानों में कामयाबी मिलेगी। हम चाहे सियासी तौर पर हो, चाहे तालीमी एतबार से हो, चाहे दीनी एतबार से हो, हम इनफरादन कुछ भी कर लें लेकिन हम कामयाब नहीं हो सकते। और न हमारा इस्लाम सिखाता है कि हम मुत्तहिद होकर के काम करें, मुतफर्रिक होकर के काम करें। अगर हम अपने नेपाल में भी चाहते हैं कि हम मुल्की पैमाने पर कुछ करें, कुछ नेपाल को कुछ दें, तो आपको आपस में मुत्तहिद होना होगा, आपस में इत्तेफाक पैदा करना होगा, ना इत्तेफाकी ख़त्म करनी होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम उलमा के अंदर इत्तेहाद पैदा करें, हमारे समाज के अंदर जो नाइत्तेफाकी है उस नाइत्तेफाकी को दूर करने की हम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह, अभी आप शेख शरीफ तहमी हफ़िज़हुल्लाह से इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ के मौजू के ऊपर बहुत ही मुफस्सल गुफ्तगू सुन रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को खुसूसन उलमाए किराम को बाहम मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ रखे। आमीन या रब्बल आलमीन। महर ज़िया सिद्दीकी साहब, आज पहली बार लगता है आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप अपना ये खोल लें। हाँ बहरहाल खुला, अपना ऑडियो खोलें। महर ज़िया सिद्दीकी साहब अपना ऑडियो खोल लें। और मैं चाहूँगा कि आप जो है हमारे ज़ूम मीटिंग के ताल्लुक से भी और नेपाल के हालात के तनाजुर में चंद जुमले 1-2 मिनट के अंदर आप पेश करें। पहले आप ऑडियो खोल लें, आप अपनी आवाज़ कैमरे पे जा करके जो ऑडियो है वहाँ पे खोल लें। उस कैमरे पे डबल क्लिक करेंगे ना, वो जो ये है साउंड, उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो खुल जाएगा। जी जी बोलें, लगता है शायद आप अपना वीडियो भी बंद कर लिए। 1 मिनट। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अभी सही है? फोटो छके ना काश्मीर तो तेरा। चलिए माशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम कासिम साहब। वालेकुम सलाम व बरकातहू। अभी नहीं, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है, एक्चुअली मुझे पता ही नहीं है जूम मीटिंग, जूम चलाने का। अचानक कैसे न कैसे ज्वाइन हो गया हूं मैं। माशाल्लाह, बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, सेहत दे, आफियत दे। आप आमीन, शुक्र जज़ाकल्लाह खैर। सबसे पहले आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ शेख। मैं महर ज़िया सिद्दीकी जिला सिरहा मोल से हूँ और फिलहाल मैं तबूक में हूँ। अच्छा माशाल्लाह। जी, और सब कैसे हैं? ठीक है शेख। आज शेख इनाम तय में कई दफा हमको रहनुमाई किए कि जूम मीटिंग में आइए, लेकिन शेख भी हमको बोले कि मैं आपको बताऊंगा जूम मीटिंग में आने का तरीका, लेकिन उसको भी शायद के फुर्सत नहीं मिला। आज अचानक मैं ट्राई कर रहा था ज्वाइन होने का, आज कामयाबी मिली है तकरीबन 2 महीने के बाद। चलिए माशाल्लाह, अच्छी बात है। हबीब दहलवी साहब और बाकी जो लोग भी अपना वीडियो बंद किए हुए हैं, सब लोग वीडियो खोल लें। ऑडियो बाद में खोलिएगा लेकिन वीडियो पहले खोल लें। हमारे शेख हबीबुर रहमान साहब भी हैं, शेख अब्दुल रहमान मदनी हफ़िज़हुल्लाह भी हैं, और बाकी हबीब दहलवी और बाकी लोग जो कुछ भाई ऐसे हैं जिसके सिर्फ नंबर आते हैं, है ना। तो आप लोग भी अपना वीडियो खोलें ताकि पता चले कि क्या है, क्योंकि हम लोग वैसे भी ताख़ीर से आज हम लोगों ने जो है मीटिंग को शुरू किया था और जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं। जी शेख हबीबुर रहमान साहब, आज हमारा मौजू था इत्तेहाद और इत्तेफाक। 1 मिनट के अंदर आप इसके ऊपर चाहे तो चंद कलिमात बोल सकते हैं
کہ ہمیں اس تعلق سے کس طرح سے ہمیں آپ رہنمائی کرتے ہیں، یا ہمارے جو علماء کو یا اپنے یہاں کے جو لوگ ہیں ان سارے لوگوں کو کس طرح سے آپ رہنمائی کرتے ہیں اتحاد و اتفاق پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. سب سے پہلی بات کہ اللہ رب العالمین سے ہم سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قول و عمل سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ایسی جگہ پہ ہوں جہاں سے کچھ کہنا اور بولنا مناسب نہیں، کسی کے دکان میں بیٹھا ہوا ہوں اور شاید آواز بھی آپ کو مشین وغیرہ کی جا رہی ہو، لیکن اب آپ نے کہا تو کھولنا پڑا. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاچو شریف صاحب نے جو اتحاد و اتفاق کے تعلق سے بات کہی ہے اس کی اشد ضرورت ہے، اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ علماء کرام جو اپنے گاؤں میں ہوتے ہیں کم سے کم اپنے گاؤں سے ہی صحیح اسٹارٹ کریں، ایک دوسرے سے رابطے میں رہیں، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہیں. بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ گاؤں کا، علاقے کا، ہر ایک کا گروپ بھی بنتا ہے اور ماشاءاللہ دلچسپی لینے والے لوگ دلچسپی لیتے بھی ہیں اور ماشاءاللہ جوائن ہوتے ہیں اور اچھی اچھی مشوروں سے نوازتے بھی ہیں. لیکن وہیں پہ بعض دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے ڈگری لیے ہوئے شخص ہوتے ہیں اور وہ اپنے قول سے یا وہ اپنے علم سے جو ہے عوام کو یا پھر اپنے دوست احباب کو کوئی فائدہ پہنچانا شاید نہیں چاہتے، یا کیا اللہ خیر کرے. اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے اور دیکھتا آ رہا ہوں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ایک جگہ سب سے پہلے اپنے صفوں میں کیا ہے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، اور خصوصاً ابھی دیکھیں تو اللہ کیا کہے، سبھی ادارے والے کا ایک الگ الگ گروپ ہے. تیمی اخوان کا الگ گروپ ہے، ابنائے سلفیہ الگ گروپ ہے، سب کا الگ ہے. الحمدللہ ایک دوسرے ملک سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے ملک سے باتیں اچھی ہوتی ہے، سبوں کو جو ہے دور دور کے تعلقات اچھے ہیں. لیکن واللہ جو دیکھا جائے تو گاؤں میں خود جو ہے اپنے تعلقات اچھے نہیں ہو پاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے، اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے اپنے تعلقات کو سنواریں، بنائیں، تاکہ یہی چیزیں ابھر کر کے لوگوں کے سامنے پہنچیں. بس اوقات دیکھا جاتا ہے کہ آپ بہت آگے پہنچ جاتے ہیں لیکن آپ اپنے گاؤں میں، آپ اپنے دوستوں میں، آپ اپنے احباب میں گمشدہ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا کوئی خاص کارنامہ نہیں ہوتا ہے. تو اللہ تعالی ہم تمام علماء کرام کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے گاؤں سماج میں جہاں ہم ہوتے ہیں، جہاں رہتے ہیں، جہاں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ہوتا ہے، انہیں جو ہے دین سے جوڑنے کی کوشش کریں اور آپسی اتحاد کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت زبردست. بہرحال سب سے بڑی کمی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں یاد ہی نہیں کرتا تو ہم کیوں یاد کریں، وہ ہمیں یاد ہی نہیں کرتا تو ہم کیوں یاد کریں. اور یہ کرتے کرتے سوچتے سوچتے ہماری پوری زندگی ختم ہو جاتی ہے، نہ وہ یاد کرتا نہ ہم یاد کرتے ہیں. تو جیسے وہ تیسے ہم، ہے نا. خصوصاً دیکھا یہ جاتا ہے کہ اپنے گاؤں گھر کے جو ہمارے علماء کرام ہیں ان لوگوں میں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، دوری بہت رہتی ہے نہیں. سارا کچھ سسٹم موجود ہے، اب بات کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی دوری ہے. بہت اچھی بات ہے، اس طرح کی باتیں یہاں دلانی چاہیے تاکہ لوگوں کو کم سے کم احساس ہو کہ کم سے کم اس کسی میٹنگ میں تو نہیں آتے ہیں. افسوس تو اس وقت بھی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو نہیں آئیں گے.
ये सारी चीजें हैं खामियां। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहिए, मैं यही कहूंगा, मैं कोशिश करने से नहीं थकता, आज नहीं तो कल वो जरूर आएंगे, जब समझ में तब आए, कोई बात नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि हम थक गए। अल्लाह ताला है। अभी शेख दहलवी साहब, हबीब दहलवी साहब, हबीब रहमान साहब के बाद हबीब दहलवी साहब। इत्तेहाद और इत्तेफाक आज हमारा मौजू है, और आप क्या महसूस करते हैं कि इत्तेहाद और इत्तेफाक में कहाँ कमी है? अस्सलाम वालेकुम। शेख हाशिम अपने मुंह पर से, असल में आज हाशिम अल हाशमी अपने मुंह पर से आप वो नकाब हटाइए, लोग देखें भाई आपको, पूरे खोलिए। हाँ माशाअल्लाह जी, असल में हम थोड़ा आज काम नहीं है अपने पास इस वजह से दुकान ठीक है। हबीब साहब आपकी आवाज कम आ रही है जी। असल में शेख माजरत चाहता हूँ, असल में दुकान में मैं हूँ, थोड़ा सा कुछ काम था। अच्छी बात, अल्लाह आपकी दुकान में बरकत है। शेख इत्तेहाद इत्तेफाक के बारे में हमारे शेख ने अभी जो बयान दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुफीद बातें बतलाई। मैं थोड़ा मसरूफ था, लेकिन फिर भी सुन रहा था, बराबर रेडियो से सुन रहा था तमाम बातें। इसमें सबसे बड़ी कमी कमजोरी हम उलमाए कराम की है, और मैं देख रहा हूँ जहाँ तक सबसे ज़्यादा इख्तलाफ हमारे अंदर ही पाया जाता है। वैसे मैं अहले हदीस के मदरसे में पढ़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फारिग वहीं से हूँ, और देवबंद के मदरसे में पढ़ा हूँ, बरेलियों के मदरसे में पढ़ा हूँ। मेरा बचपना जो है बरेलियों के साथ गुजरा है, देवबंदियों के साथ गुजरा है, और ये कह लीजिए दिल्ली में मैं जहाँ रहता हूँ बरेली है, पूरा इलाका बरेलियों का है। लेकिन जहाँ तक मैं देखा उनके अंदर इत्तेफाक, उतना इत्तेफाक हमारे अंदर नहीं है। वो अगर कोई आलिम उनके अंदर है तो बहुत ही ज़्यादा उसकी ताजीम करते हैं, इकराम करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। ये अलग चीज़ है, थोड़ा कुछ लोग गुलू भी कर जाते हैं, लेकिन उसकी इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं। और हमारे यहाँ कोई कितना भी बड़ा आलिम हो जाए, हर आदमी अपने आप को ये समझता है कि मैं ही सबसे बड़ा आलिम हूँ, और वो ये समझता है कि ये कुर्सी, ये वादा मुझे ही मिलना चाहिए। इसलिए हमारे अंदर इख्तलाफ बहुत ज़्यादा है। हमारी वजह से आवाम के अंदर भी इख्तलाफ ज़्यादा है, और भाई भाई के अंदर इख्तलाफ है। तो जब हमारे अंदर कमी कोताही है तो हम औरों को कैसे समझाएंगे, कैसे तंबीह करेंगे? मिंबर पे जब हम खड़े होंगे, दूसरों को समझाएंगे इत्तेहाद के बारे में, इत्तेफाक के बारे में। जब वो लोग देखते हैं कि हमारे अंदर इत्तेफाक, इत्तेहाद नहीं है, तो उनके दिल पे क्या असर करेगा? शेख मैं अपनी बात बता रहा हूँ, हमारे गाँव के अंदर कुछ दिन पहले इख्तलाफ हुआ, हमारे हिंदू भाइयों के अंदर, मुस्लिम भाइयों के अंदर थोड़ी सी बातों पर इख्तलाफ हुआ। दो घराने में बात हुई, एक तरफ हिंदू थे, एक तरफ मुसलमान थे। तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा इख्तलाफ हो जाएगा। मैंने फौरन जो है कुछ लोगों को, जो हमारे मुस्लिम भाई थे, चंद नौजवानों को बुलाया, और जो गैर मुस्लिम की तरफ से थे उन चंद भाइयों को बुलाया, और एक जगह बैठक किया। फौरन एक नई तंजीम, यानी एक समूह बनाया, जन एकता सेवा समूह के नाम से, और तमाम मुस्लिम भाइयों को और हिंदू भाइयों को फौरन एक, समझ लीजिए, एक लड़ी के अंदर पिरो दिया, और एक गिरोह के अंदर एक जमात बनाया, एक समूह बनाया, ताकि ये लोग एक हो जाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज सब पूरा गांव एक है, हिंदू मुसलमान सब एक है, और हम लोग एक साथ बैठ करके जो है कि कभी कोई प्रोग्राम होता है, अक्सर महीने में एक मरतबा मीटिंग करते हैं, और उसी के तहत गांव में जब कोई मुसीबत ज़्यादा होता है या कोई और परेशानी होती है तो हत्तल इम्कान उसकी मदद करते हैं उसी के जरिए से। अभी कोरोना की वजह से जब परेशानी फैली हुई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने क्या किया, पूरे गाँव से चंदा उठाया, और सब उसके अंदर सब हिंदू मुसलमान सब लोग मौजूद थे, और फिर पूरे गांव में तकसीम कर दिया। इसी तरीके से और जो कुछ हो सका हम लोगों ने इसी समूह के जरिए से किया, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज इख्तलाफ हमारे गांव से खत्म हो चुका है। तो हमें एक आलिम होने की वजह से हमें चाहिए कि जहाँ कहीं भी इख्तलाफ देखें, कोशिश करें कि वहाँ बढ़ करके उसको खत्म करने की, जहाँ कहीं भी इख्तलाफ हो वहाँ इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश करें। चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह को जज़ाए खैर दें, और हम सबको आप जो खिदमत खल्क कर रहे हैं हिंदू और मुस्लिम सारे लोगों में, ये बहुत बड़ी बात है, और ये हम सबको अल्लाह तबारक व तआला जज्बा हमारे अंदर पैदा फरमाए, ताकि हम लोग जो है जहाँ भी करें तो कुछ इस तरह से करें कि ऐसा ना हो कि भेदभाव हम लोग कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला हमें मिलजुल कर सब काम करने की तौफीक अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम साहब भी वहाँ मौजूद हैं, और आपके अब्बू, आप अपने अब्बू के पीछे देख रहे होंगे, ठीक है, बसारुल साहब, आपके अब्बू आज हमारे साथ शरीक हैं, तो आप अपना ऑडियो वीडियो खोलिए, ठीक है। और आप क्या कर रहे हैं नेपाल में, ठीक है, इत्तेहाद और इत्तेफाक के ऊपर आप क्या करना चाहते हैं, है ना, हम लोगों को क्या नसीहत करना चाहते हैं, बोले बसारुल साहब। चलिए, बसारुल साहब का जब तक नहीं खुला है तब तक जो है हमारे कलीम भाई जो हैं इकरा स्कूल वाले,
माशाल्लाह बहुत मुतहरिक किस्म के आदमी हैं, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे, और बराबर हम लोग के साथ शामिल होते हैं और जनकुल की खबरें दिया करते हैं। तो अभी हमारे साथ कलीम भाई, 1 मिनट आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सब हजरात को। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वैसे चलिए ठीक है माशाल्लाह। जी 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 से कैसे हैं शेख? माशाल्लाह बड़े बुजुर्गों हबीब साहब को देख रहे हैं पीछे माशाल्लाह। ये बशारू साहब के हमारे अब्बू ठिला के हम पहचानते हैं। जी 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 जी। अस्सलाम बशारू वालेकुम। साहब अपने चेहरे से नकाब हटाएं। हाँ शेख अभी क्या माजरत करते हैं, लेट से आए मीटिंग में है ना, मुरीबा से अभी आ रहे हैं क्या? मुरीबा थारी होके अभी आ रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। आज शेख का खुतबा मुरीबा में था, वही मैंने दहेज और बारात के ऊपर में दिलवाए वहाँ पे मुरीबा में। अच्छी बात है माशाल्लाह भाई, ये कम से कम जागरूकता है ना कि भाई लोगों के अंदर कम से कम ये चीज की कमी महसूस हो रही है, तो इसके ऊपर काम होना चाहिए और करें आप लोग। आप ही लोग उस मैदान में, हम लोग तो दूर है। हाँ फेसबुक पे तो लाइव प्रोग्राम होगा, लाइव खुतबा था, लाइव था, पूरे खुतबा लाइव है। मैंने दहेज और बारात कैसे कम किया जाए, क्या है उसी का असरात शेख ने बतलाया, अजमुद्दीन साहब ने। और एगो चीज ये कर दिया कि अल्लाह आप लोगों की दुआ से और अल्लाह के फजल करम से बहुत दिन से इस चीज की चाहत थी कि एकरा इस्लामिक स्कूल में एक माने शोबे हिफ्ज है ना, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम कर दिया है। शोबे हिफ्ज माने ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर रहे, इंजीनियर रहे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्यों नहीं पढ़े, लेकिन मखरज के साथ पढ़े। लास्ट की सूरत क्यों नहीं पढ़े, लेकिन मखरज के साथ पढ़े। तो 3 दिन पहले इसका आगाज कर दिया गया है। हाफिज आमीन आमीन। कुरान वअल्लम, सबसे बेहतर इंसान वही है जो कुरान सीखता और सिखाता है, और ये जज्बा आपके अंदर है ना। बड़ी खुशी हुई, मैंने देखा था, पोस्ट देखा था, मैंने दुआएं भी दी थी, और ढेर सारी दुआएं हमारे आपके साथ और सारे लोगों की दुआएं आपके साथ इंशाअल्लाह। आमीन। हम साथ में इंशाअल्लाह, हम अपने बच्चे भी देंगे। आप जाके अकेले आइएगा, लेकिन कह रहे थे अभी बंद हो रहा है, इसीलिए जो है मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। बहरहाल भाई, आप अगर हमें सुन रहे हैं तो आप जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक के मौजू पे कुछ आप नसीहत करना चाहें तो हमें करें। इसके बाद जो है मैं सिराजुल मोमिन साहब हमारे शामिल हुए हैं, सिराजुल मोमिन कासमी साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहे। इनके गांव में भी बहुत दिनों से इख्तलाफ था और उन्होंने मेरे पास तहरीर भेजी इस हफ्ते डालने के लिए। मैं उसका फिर माजरत तलब करता हूं, अभी इस जूम मीटिंग में भी मैं इस हफ्ते में भूल से नहीं डाल सका, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है कि मैं अखबार में आपका वो सब कुछ नहीं डाल सका। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते जरूर डालूंगा। तो सिराजुल मोमिन साहब, बसारुल साहब के बाद जरूर आप भी 1 मिनट हमारे साथ जुड़े। बसारुल साहब मास्क हटा के बोले। जी शेख, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अभी काठमांडू में हूँ और यहाँ का मौसम भी ठीक है। और रह गया कि आप लोग जो काम कर रहे हैं ये तो बहुत पहले स्टार्ट हो जाना चाहिए था, है ना, लेकिन देर सही दुरुस्त है ना, तो स्टार्ट हुआ है। मकसद हयात और सारे लोग जो जुड़े हैं तो इससे बहुत खुशी हो रही है हम लोगों को। और रह गया कि सबसे पहली बात है कि इंसान को जो है सबसे पहले खुद को सुधार करना जरूरी है ना। अगर आदमी अपने आप को नहीं सुधार करेगा तो समाज और समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता है। और इत्तेहाद और इत्तेफाक तो बात की बात है। रह गया कि इंसान को चाहिए और हम और आप लोगों को सबसे पहले अपने आप को सुधार करें, सामाजिक रूप पर और दीनी तालीमी और जो भी अमली तौर पर भी सुधार करने की जरूरत है। और अगर इंशाअल्लाह अगर हम लोग खुद नौजवान लोग जो भी है, हमारे गांव में भी गांव का भी बहुत बुरा हाल है नौजवानों के ताल्लुक से, रह गया कि उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। और मैं क्या बताऊं, चलिए अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप लोग से 1-2 मीटिंग में ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन मेरे को आइडिया नहीं था, है ना। इंशाअल्लाह आगे जो भी मीटिंग होगी मैं होऊंगा। जी बिल्कुल, आप जरूर ज्वाइन हो। और आप लोग चूंकि नेपाल में रहते हैं, काठमांडू में भी हमें जरूरत है लोगों की। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वहाँ भी आप लोगों को जो है काम दिया जाएगा और आप लोग काठमांडू में भी काम करेंगे। और जो लोग जिस शहर के अंदर है, इंशाल्लाह हम लोग खास तौर से इत्तेहाद और इत्तेफाक के लिए या कोई इस तरह की जो हमारे यहाँ की बुराइयाँ हैं, इंशाल्लाह हम लोग जब आपस में बात कर लेंगे तो आप लोगों को इस तरह से काम दिया जाएगा। हाशिम अल हाशमी साहब, आप भी जो है अपना ऑडियो और वीडियो खोल लें। सिराजुल मोमिन के बाद जो है आपको बोलना है। सिराजुल मोमिन कासमी साहब, आप जो है आपको 1 मिनट दिया जाता है। 1 मिनट के अंदर आप इत्तेहाद और इत्तेफाक के मौजू को जो बोलना चाहें बोलें कि हमें किस तरह से इत्तेहाद पैदा करना चाहिए आपस के अंदर। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई, ये सबसे अहम मौजू है। कुरान करीम में भी इसकी बहुत ज़्यादा ताकीद आई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी इस मौजू से बहुत अहम है।
लिहाजा इन चीज़ों को पेश नज़र रखते हुए आज हर बस्ती में कोई भी ऐसी बस्ती नहीं है मुसलमानों की ख़ास तौर से जहाँ ना इत्तफाक़ी हो। इसलिए कोशिश ये हो कि हम जो उलमाए किराम हैं इसको आपस में कैसे हल करें, कैसे वो हम लोगों का आपस का मैटर है। उलमाए किराम हर बस्ती में कमेटी बैठा करके और इस मौज़ूआत पर काम करे, और अहम मौजू है ये। अगर किसी मैटर को लेकर के आपस में इख्तलाफ है तो उसको एक दूसरे से करीब करने से दूरी, अगर हम गुफ्तगू नहीं करेंगे इस मौजू पर उलमाए किराम के बीच में तो मज़ीद दूरियां बढ़ती जाएंगी। इसलिए अहम ज़रूरी ये है कि पहले उलमाए किराम जो समझदार तबका है उसको आपस में बैठाए और उससे मौजू ले करके इत्तेहाद और इत्तेफाक की कोशिश करके उसके बाद आगे बात करे। शेख कासिम को पूरी बात मालूम है, मैंने तहरीरी तौर पर भी उनको लिख करके दिया है। मेरी बस्ती में तकरीबन 40 साल से इख्तलाफ है, 40 साल से इख्तलाफ था। ये इख्तलाफ नया इख्तलाफ 6 साल से है, लेकिन पुराना इख्तलाफ 40 साल से है। उसको जो है हम लोगों ने हल किया है, और हल इस तौर पर किया है कि पहले हमने उलमाए किराम को आपस में जो गांव के जो उलमा है उस सबसे मैंने मशवरा लिया कि भाई तुम लोग चाहते क्या हो, हमेशा ऐसी ही रहे या क्या चाहते हो, इस मौजू को हल करो। उसके बाद सबकी राय आई कि भाई नहीं हम जुड़ना चाहते हैं। तो उसी वजह से पिछले जुमा हमने मीटिंग बैठाया दोहा में और तमाम बस्ती के लोगों को बुलाया, सब शरीक हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मौजू बहुत तक के हल हो चुका है, बहुत हद तक के हल हो चुका है। अब मामूली बात यानी इख्तलाफ का जरिया है, जैसे मस्जिद मदरसे की जमीन की रजिस्ट्री जो है, मस्जिद के जमीन की रजिस्ट्री मदरसे के नाम से हो गई है, वो विद्यालय में आ गया है और विद्यालय की वजह से गैर मुस्लिम कभी भी हावी हो सकता है। ये सब मौजूआत है, तो इंशाल्लाह इस सब मौजूआत पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ीला। चलिए, अल्लाह आपके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा फरमाए और हम सब मुसलमानों को बहा मुत्तहिद और मुत्तफिक रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। जी, तो अभी हमारे साथ जो है शेख फिरोज साहब सल्फी जुड़े हैं। हासिम साहब अल हाशमी, कहाँ है आप? आपने खोला नहीं अपना, ये चले गए क्या लगता है मेरे ख्याल से। जी फिरोज सल्फी साहब, इत्तेहाद और इत्तेफाक की क्या जरूरत आप महसूस करते हैं? हमारे नसीर फैजी साहब, आप हमें सुन रहे हैं? जी शेख सुन रहा हूँ। कहाँ कैसे खुल गए? इत्तेहाद और इत्तेफाक हमारा मौजू है। जी सुन रहे शेख, आप मेरी बात सुन रहे हैं आप? हाँ, तो चूंकि आप जो हैं माशाल्लाह जामिया इस्लामिया मदीना मनोवरा के अंदर ज़ेर तालीम है और ये बड़ी खुशी की बात है और हम सब के लिए एक बहुत बड़ा फख्र की बात है। बल्कि तो आप जो हैं इस मौजू पे 1 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, आप कुछ बोलें इसके ताल्लुक से, इत्तेहाद और इत्तेफाक की क्या जरूरत आप महसूस करते हैं? जी शेख, आप मेरी बात सुन रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। हेलो जी सुन रहा हूँ, आप बोलें। जी 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 इत्तेहाद और इत्तेफाक ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे इंसान तरक्की की चोटी पर पहुंच सकता है। क्योंकि दुनिया के अंदर जिस कौम ने भी, या फिर ये समझिए कि हर वो देश या हर वो मुल्क जो अभी सबसे आला क्वालिटी या सबसे ऊपर या सबसे फौकियत हासिल करने वालों में शुमार किए जाते हैं, वो इत्तेहाद और इत्तेफाकी के ज़रिए से हैं। और इसमें एक और चीज़ है, इल्म। ये दोनों चीज़ लाजिम मलजूम है शेख। और हम देखते हैं कि अभी जिस तरीके से हालात आ चुके हैं हमारे नेपाल में या पूरी दुनिया में, समझिए कोरोना की वजह से, तो इसमें तो अव्वलन हम लोग पहले भी आलिम उलमा खुसूसन इत्तेहाद और इत्तेफाक तो बज़ाहिर कायम करते हैं, लेकिन अंदर से उसके अंदर कीना रहता है, कपट रहता है और दुश्मनी रहती है। और दूसरी चीज़ ये कि अभी इल्म खुसूसन हमारे नेपाल में अभी देखिए कितने बच्चे हैं, और ये मदरसे के फारिगीन या जो पढ़ते हैं अभी जो ज़ेर तालीम है उसका इल्म ज़ाय हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ शेख लाजिम मलजूम है। जब तक हम और आप या हम में से कोई भी शख्स इस दोनों चीज को नहीं पकड़ता है, तब तक वो बुलंदी के चोटी पर नहीं पहुंच सकता है। इसलिए शेख हमें आज जरूरत इस बात की है कि हम दिल में नहीं शेख, दिल और जुबान दोनों से एक दूसरे से मोहब्बत करें और इत्तेहाद और इत्तेफाक का दर्स दे, ताकि हमारी और हमारे बच्चों का जो मुस्तकबिल हो
वो इन्हीं दोनों चीजों की बिना पर एक बुलंदी और क्या कहते हैं एक बुलंदी और कामयाबी की चोटी तक पहुंच सके। तो शेख मेरी यही मैं अपनी बातों को यहीं से ख़त्म करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा। चलिए माशाल्लाह, जिस तरह से आप लिखते हैं उसी तरह से बोलते हुए माशाल्लाह अच्छी बात है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और आपके इल्म अमल के अंदर बरकत अता फरमाए। अभी हमारे साथ से फिरोज साहब सल्फी, फिरोज सल्फी साहब बेल्हा, आपका ऑडियो वीडियो सब खुला हुआ है। वालेकुम सलाम। इत्तेहाद इत्तेफाक जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व लाकुल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह मुहम्मदिन व आलिहि वसहबिहि अजमईन। ये हदीस शरीफ है, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, कि अंबिया के वारिस है उलमा, व इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व अन्नल अंबिया लम युवरसु दीनार वला दिरहमा व इन्नमा वरसुल इल्म। आज जो है उलमा जो है अंबिया के वारिस पर जो है मिशन पे काम नहीं कर रहे हैं। आज हमारे उलमा के अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक हो जाए, मैं समझता हूँ पूरा मामला हल है। आप देखें कि आप जो है कोशिश कर, अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश हम लोग की जारी है, लेकिन उलमा में जो है बज़ाहिर बहुत इख्तिलाफ नजर आ रहा है। जब आप उलमा को जो कहेंगे कोई काम के लिए, तो मुंतशिर लोग हैं जो पूरे मुंतशिर है। अगर पूरे उलमा जो मिलकर जो है मुत्तहिद होना आसान है। और आप देखेंगे कि अपने यहाँ लोग मुंतजिर हैं कि जो है कुछ काम हो, लेकिन जो है हमारे उलमा ही में बहुत इख्तलाफ है, शदीद इख्तलाफ है। अलबत्ता इंशाअल्लाह जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे उलमा भी आपस में अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन बज़ाहिर अभी भी उलमा बहुत इख्तलाफ। मैं यही कहूँगा कि जो हम उलमा जो है आपस में मुत्तहिद हों, और इंशाअल्लाह अगर हम लोग मुत्तहिद हो जाएंगे तो कौम एकदम मुत्तहिद हो जाएगी और इंशाअल्लाह सब काम आसानी होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चलिए माशाल्लाह, अब इसके बाद आखिर में इंशाल्लाह हम शेख अब्दुल रहीम साहब से गुजारिश करेंगे कि आप अपना ऑडियो और वीडियो खोल लें, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा हो गया और वैसे भी ताख़िर हो गई थी। अगर इसमें किसी को कोई सवाल हो या कोई बात हो तो आप अपना हाथ उठाएं और ज़रूर अपनी बात आप रख सकते हैं। सिद्दीकी साहब, मौलाना सिद्दीक साहब, आप अपना ऑडियो वीडियो खोलें, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? ऑडियो खोलना पड़ेगा तब ना। ऑडियो खोलिए ना। ऑडियो आपकी नहीं सुन रहे हैं हम, आप हमारी सुन रहे हैं। जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमारे उस्ताद मोहतरम शेख शरीफ तैमी साहब बोले हैं सारी बात, अब हम क्या बोले और हम लोग को क्या बोलने की है। कम से कम हम बस नसीहत हासिल कर रहे हैं। बस लगते नहीं है कि आप आपके ये उस्ताद हैं, आप ही उनके उस्ताद लग रहे हैं। नहीं। चलिए, आपके इल्म अमल में और उम्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाए, जिस्म जान में बरकत दे। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब मैं मौलाना फिरोज साहब जो बोले हैं ना, वो सही बात बोले हैं। आलिम सुधर जाए तो आलम सुधर जाएगा। क्या बात, क्या बात, ये तो आपने आलिम के अंदर आलिम के अंदर इत्तेफाक नहीं है, हर चीज पाया जाता है आलिम के अंदर। एक आलिम की तरफ बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा। जासूसी, गीबत और तानाजनी और बदगुमानी, ये सारी चीज आलिम के अंदर पाया जाता है। इसके वजह से हमारे मतलब गांव के जो जाहिल आदमी हैं या जो कम पढ़े लिखे आदमी हैं, उनके अंदर जो है और बुराई फैली हुई है कि मौलवी साहब नहीं सुधरे हुआ है तो हम क्या सुधरे, मौलवी साहब गलत रास्ते पे। इसलिए इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम कीजिए। हमारे उस्ताद साहब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र दे और मौलवी फिरोज साहब की भी लंबी उम्र दे। पहले इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम कीजिए। उलमा के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ी है आलिम के अंदर। इतनी बड़ी भी गड़बड़ी नहीं है। इंशाल्लाह सब लोग बात कर रहे हैं और सुन रहे हैं इंशाल्लाह। और हम लोग चाह रहे हैं सारे उलमा ही के नाम को तो हम लोग बैठाते हैं यहाँ पे और सारे उलमा ही के दरमियान हम लोग बातें कर रहे हैं। और इंशाल्लाह तबारक व तआला आज नहीं तो कल जरूर वो लोग समझेंगे कि हमारी सही बात कर रहा हूँ। आपके पास हम बोल रहे हैं कुछ और पीठ के पीछे कुछ और रख रहे हैं। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह ये कहानी हो चुका है। जुलेखा पीछे से हमला कर दिया, उस हिसाब से हमला हो गया।
और हो रहा है। चलिए, इंसान है, हम लोग खताकार हैं, गुनहगार हैं, स्याकार हैं, सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम लोग इसको मिटाने की कोशिश करें। बुराई को ज्यादा बुराई करेंगे ना तो नहीं खत्म होगा। बोले कि माशाल्लाह आपके अंदर दीनदारी आ गई है, उलमाए किराम को बोले कि माशाल्लाह आप देख रहा हूँ कि बहुत बाहम मुत्तफिक आप रहते हैं और इसके बाद मजीद काम करने की जरूरत है, उसकी तारीफ करें आप, तो देखिए इंशाल्लाह कुछ न कुछ आगे काम बढ़ेगा। चलिए शेख अब्दुल मदनी हफिज़हुल्लाह, आप जो है दुआए कलमात से पहले अगर आप कुछ बोलना चाहें तो जरूर बोलें। इत्तेहाद और इत्तेफाक हमारा मौजूद था आज, और अपने दुआओं के साथ जो है इस मजलिस का आप इख्तिताम कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, ये दीनी मजलिस है और इसके अंदर उलमाए कराम मौजूद हैं। अक्सर उलमाए कराम होते हैं और हम सारे लोगों का एहतराम करते हैं और मकसद ये नहीं है कि किसी की तानो तशनी या कोई और चीज़, लेकिन चंद चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ और वो ये है कि ये लाइव जो है नशर करते हैं, तो इस पे जो है कुछ प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए ज़माने के साथ कि लोग इसको रगबत के साथ, दिलचस्पी के साथ सुनाएं, और उसके लिए थोड़ी जो है मेहनत की ज़रूरत है। देखते नहीं हैं गैरों के प्रोग्राम में किस तरह से लोग, गरचे उसके अंदर फ़ायदा कम हो या कुरान और सुन्नत का जिक्र न हो, लेकिन जो ढांचे होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो हम लोग भी थोड़ा कुरान करीम की तिलावत है, इसी तरह से हमदो नात है, कायदे से जो है बाज़ाब्ते और थोड़ा सा अच्छे अंदाज में, नहीं कह रहा हूँ कि अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन इससे भी अच्छा होना चाहिए ताकि लोग ये लाइव बहुत दूर तक सुनते हैं और बहुत लोग सुनते हैं। और इसी तरह से आज का जो मौजू था, उस मौजू के ताल्लुक से मैं बतलाना चाहता हूँ कि हम लोग जो बोलते हैं ना, जिस तरह से आम मीटिंग करते हैं, आम तौर पे बैठते हैं, उस तरह से इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं जो नहीं होना चाहिए। आज का मौजू जो था इत्तेफाक व इत्तेहाद, इत्तेफाक व इत्तेहाद पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक धागा है और उस धागा को अगर आप तोड़ना चाहें तो आसानी के साथ तोड़ सकते हैं, लेकिन उसी को आप मिला करके कपड़े के शक्ल में दे दें तो उसको आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये इत्तेफाक व इत्तेहाद की अफादियत है। इत्तेफाक व इत्तेहाद किसे कहते हैं, सबसे पहले इसको भी समझने की जरूरत है। इत्तेफाक व इत्तेहाद का मतलब नहीं है कि हर आदमी हमसे आके कहे या हर आदमी एक ही काम को करे और उसमें शामिल हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। इत्तेफाक व इत्तेहाद का मतलब ये होता है कि कोई किसी के खिलाफ ना हो, काम कर रहे हैं दीनी काम के अंदर मुत्तफिक हों, दूसरे का ताउन करें, और मुख्तलिफ काम है, गरचे मुख्तलिफ यानी बहुत सारे मराकिज़ हैं या बहुत सारे मदारिस हैं, लोग काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर इख्तलाफ नहीं पैदा होना चाहिए। लेकिन यह है कि सब काम करने वाले अपने अपने तौर पे कर रहे हैं तो करने देना चाहिए, और उसमें कोई मुज़ायका नहीं। हम नहीं कहेंगे कि हमारे साथ जो लोग नहीं जुड़े वो हमसे जो है मुख्तलिफ हैं, या जिस मरकज़ से नहीं जुड़े हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो है मुखालिफ हों या उनका इत्तेफाक ना हो। तो इत्तेफाक व इत्तेहाद का मतलब कि हम ज़्यादातर इख्तिलाफ ना करें, उसके तरफ ना जाएं, और हम साथ देना चाहते हैं तो साथ दें। इस ताल्लुक से मैंने कुछ जो है सुना, हमारे जो है अज़म शरीफ साहब ने कहा है, तो बहरहाल मैं ये कहूँगा कि यानी जितना जिक्र किया जाता है उतना नहीं है। काम करने वाले काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं अपने ही बारे में नहीं कर रहा हूँ, आम तौर पे कह रहा हूँ, लेकिन किसी को निशाना नहीं बनाना चाहिए, इसलिए कि लाइव है। लाइव पे जो है मिसाल के तौर पे आप कहेंगे मदनी वगैरह ऐसे हैं, कोई कहे कि उमरी ऐसे हैं, कोई कहे कि तैमी ऐसे हैं, तो इससे इख्तिलाफ बगैर नाम जिक्र किए हुए कि हमारे उसको दूर करें, और हम बजाय जो है इख्तिलाफ को जिक्र करने के हम इत्तेफाक को जिक्र करें कि हमें मिलके काम करने की जरूरत है। हमने बहुत कुछ खो दिया है इख्तिलाफ की वजह से। पिछले जमाने के अंदर हमारे दरमियान इख्तिलाफ था, हमने
उसके अंदर एक जमाना या एक जो है बहुत बड़ा काम जो है खो दिया है, या बहुत बड़ी तरक्की जो हमने खो दिया है। जो हमारे इलाके में काम होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम चलें मिल करके इस काम को करें। लेकिन अगर हम जो है वहां पे कुछ लोगों का, कुछ मरकज का या किसी का नाम लेते हैं तो वो जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं, यानी मैं मानता हूं, या इस तरह से जो है अच्छा नहीं होगा। कोई भी जो है जिक्र करें, इसी तरह से कोई भी आलिम उलमा है तो यानी अलल इतलाक न कहें कि आलिम उलमा हैं, नहीं, गलती होती है, लेकिन मिल के बैठ के काम करने की जरूरत है। और ना कहें कि उलमाए कराम ही के दरमियान इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ तो हर जगह है, उलमाए कराम को इत्तेफाक करना चाहिए। हम लोग नमूना हैं, यकीनन नमूना है। हम लोग सुधरेंगे, हम लोग जो है दावत देंगे तो दूसरे लोग सुधरेंगे, लेकिन उतना नहीं है जितना जो है अब इस चीज को लाइव वगैरह पे और इस चीज पे जो है नश्र किया जाए। इसमें समझेंगे कि ये इन लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा, यानी जितना है नहीं उतना जो है ये किया जाता है। तो बहरहाल काम करने वाले कर रहे हैं, इंसान से गलती होती है। इंसान कोई भी हो, बहुत सारे लोग जिक्र भी कर देते हैं, फेसबुक पे भी जिक्र करते हैं, बहुत सारे लोग जो है व्हाट्सएप पे भी जिक्र करते हैं, मुखालफत के अंदर एक दूसरे के खिलाफ। आदमी को काम करना है, काम करे, जिसके साथ इत्तेफाक ना हो ना काम करे, ये अलग चीज है। तो मैं देखता हूँ मुलाहिजे के तौर पे बहुत सारे ग्रुप के अंदर एक दूसरे के खिलाफ लिखा जाता है, बोला जाता है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आलिम उलमा का ये सेवा नहीं है, हमारा आलिम उलमा का काम नहीं है। लेकिन बहरहाल ये किसी कौम के साथ या किसी जो है जामिया के साथ या किसी फारगीन के साथ खास नहीं है, ये बल्कि जो है आम तौर पे ऐसा होता है। और हर जमाने के अंदर इख्तिलाफ रहा है, काम करने वाले किए हैं। सहाबा कराम के दरमियान भी देखें ग्रुप बंदी थी, ताबईन के दरमियान भी जो है बाज के राय से इख्तिलाफ करते थे, बाज के अंदर। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो लोग जो है ऐसा, हाँ, हत्तल इम्कान जो है इत्तेफाक व इत्तेहाद की दावत देते थे और साथ में लेके चलते थे और मुत्तफिक होने की कोशिश करते थे। तो ये उन लोगों का शेवा था, हमें भी ऐसी होना चाहिए। हमारे जुबान से, हमारे हाथ से दूसरे आलिम उलमा महफूज रहें, दूसरी जमात महफूज रहे, हम उनका जो है उनकी इस्लाह करें, हम किस तरह से जो है एक प्लेटफार्म पे ला सकते हैं उसकी तरफ कदम बढ़ाएं। ये सारी चीजें हैं। और जो सख्त सुस्त कहने से कोई भी जो हमारे करीब नहीं आएंगे। अगर किसी सख्त सुस्त कहते हैं या बात है, तो ये चंद चीजें थी जिस समझा है लोग। और आवाज कट रही है। इंशाअल्लाह बहुत सारे जो है कर रहे हैं, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला तमाम। आवाज कट रही है? ठीक है, ठीक है, अभी ठीक। कभी कभी कट जाता है। आवाज आ रही है? अभी ठीक है। हाँ, तो नेटवर्क वगैरह का मैसेज आता रहता है ना, उस बीच में जो है तो कटता है। तो बहरहाल मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग इंशाअल्लाह काम कर रहे हैं, करेंगे। और सारे लोगों को हमने बहुत खोया है, उसको अब जिक्र करके फायदा नहीं है, बल्कि उसको भुला देना है। बस एक नसीहत के तौर पे उसे जिक्र करना है कि हमने बहुत खोया है, ये चीज खोया है, अब हमें नहीं खोना चाहिए, अब मिलजुल करके काम करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला आप लोगों को बरकत दे इल्म के अंदर, अमल के अंदर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के दरमियान इत्तिफाक व इत्तेहाद पैदा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों को साफ सुथरा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों से कीना, बुग़्ज़, इनाद को निकाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम मुसलमानों को गलबा अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार है वो शिफाए कुल्ली अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें से जो परेशान हाल है उसकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को दुनिया आखिरत दोनों के अंदर भलाई से नवाज। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चलिए माशाल्लाह, अब इसके साथ ही जो है इस मजलिस का अख्ताम किया जाता है। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। आप लोगों ने अपना वक्त और टाइम निकाल करके आप हमारे साथ जो है जुड़ते हैं, इसी तरह से जुड़ते रहें। और हम लोग कौम मिल्लत के लिए जो भी कर सकते हैं आप लोगों के मशवरे से और आप लोगों के ताउन से इंशाअल्लाह हम लोग इस काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।